Assalamualaikum students, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today actually we are going to discuss Hardy-Weinberg equation and how we can calculate allele frequency. So we will derive a relation for the which is known as Hardy-Weinberg equation like this. Okay, this is a relation which we can use to calculate allele or gene frequency in a population. So in this equation here you can see where P stands for dominant allele and Q stands for a recessive allele. Okay, and over here PQ represents homozygous pattern of heterozygous patterns of alleles. Okay, basically if we will go to derive Hardy-Weinberg equation, before this we should know that means there are only two types of alleles in a population. कि पूरी population एक population में जब आप allele की फ्रीक्वेंसी या जीन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं तो इट्स मीन उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ दो तरह के जो हैं अलील हो सकते हैं, या तो वो रिसेसिव होंगे या तो वो डोमिनेंट अलील होंगे. इसी तरह हम लोगों के पास जीन्स भी या तो डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन से वी कैन यूज अ रिलेशन लाइक Hardy-Weinberg equation to derive or to find exact allele frequency in a population. And in previous video or in a previous lecture we already discussed allele frequency means the number or the ratio of a particular allele in a population. कि suppose एक population है उसमें 500 allele मौजूद हैं, तो उन 500 allele में से अगर आप एक allele की frequency फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, उस एक allele को लेंगे और 500 पे डिवाइड कर देंगे कि वो 500 allele में से एक allele कितना है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके जो डेरिवेशन की है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक न्यू वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे इजीली इस पे allele known as P. Okay, so the alternate part of that allele on other chromosome, okay, will be a Q. Okay, there are two possibilities. So now if we will derive a relation, we can say P plus Q is equal to 1, means once P plus Q is equal to 1 gene, मीन्स जब ये P प्लस Q की बात है कि मतलब एक अलील है और दूसरा अलील, ये दोनों आपस में इंटर या तो वो रिसेसिव पैटर्न में काम करेंगे या वो डोमिनेंट पैटर्न में काम करेंगे. तो हम लोगों के पास P प्लस Q इज इक्वल टू 1 मीन्स दो अलील मिलेंगे तो एक जीन हम लोगों के पास बनता है, या तब जाके अलील एक्सप्रेस होते हैं, राइट. So allele either this one will be a dominant and this one will be a recessive. अब हम ये तो allele frequency के लिए फॉर्मूला कि अगर हम allele frequency फाइंड करें then we can use this relation. But if we are going to find the gene frequency, so gene frequency के लिए हम क्या कहते हैं कि दो allele मिलते हैं तो एक जीन बनता है, राइट. तो अगर हम लोग के पास दो allele मिले जैसे P है और P का हम क्या करेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू, जैसे हम कहते हैं कि ये वन अलील दोनों एक्ट करेंगे. अब इनमें से अगर हम जीन की फाइंड करें तो इसका मीन स्केयर बन जाएगा कि जैसे P का स्केयर बनेगा तो इट्स मीन नाउ देयर आर टू अलील्स एंड इट विल बिकम इनटू अ वन जीन. So we will take a square over here and we will take a square over here. In that relation, if we will open this relation or formula, what will be happening? So let me remove this for you. Like you can see P plus Q square is equal to 1 का स्केयर ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे P स्केयर प्लस 2PQ प्लस Q स्केयर is equal to 1 का स्केयर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा. So this is a Hardy-Weinberg equation here, as you can see in the lecture as well as I already mentioned in the lecture. Means this is a Hardy-Weinberg equation and we can derive it, and this equation can be used to find the exact gene frequency in a population as well. So P square plus 2PQ is equal to plus Q square is equal to 1. This is a Hardy-Weinberg equation and we can use this relation to find or to assess exact allele or gene frequency in a population. Further restriction fragment length polymorphism, RFLP. RFLP in human genetics is a restriction fragment length polymorphism is actually a technique. अच्छा, इसको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए RFLP को कैसे आप समझ सकते हैं. सो RFLP में बेसिकली होता है कि आप दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, लाइक दिस इज क्रोमोसोम फ्रॉम वन इंडिविजुअल, दिस इज अ क्रोमोसोम फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल. दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, आप उन दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो DNA है उसको लेते हैं और उसको फिर कट करते हैं, तो देखा ये जाता है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल का हालांकि जो सेम DNA या सेम जीनोम है वो डिफरेंट साइट्स पे कट होता है. दैट DNA is not
सॉरी कट इन एट द सेम टाइम सेम साइड्स, तो वो डिफरेंट साइड से कट होता है डीएनए और डिफरेंट उसके लेंथ के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जब वो फ्रेगमेंट्स बनते हैं डिफरेंट एक सेम डीएनए के फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जब उसके फ्रेगमेंट्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं तो इसमें दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ बेसेस ऑन देयर लेंथ. That's why they are representing or they are expressing in a different fashion, and that's why diversity exists in a human genome as well, कि जो ह्यूमन के जीन है वो फिर डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. So in human genetics, restriction fragment length polymorphism is a technique that detects variation in homologous DNA sequences known as polymorphism in order to distinguish individual populations. कि एक पॉपुलेशन के अंदर दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, आपका उन्होंने उनका डीएनए लिया और आप जब उनके डीएनए को स्टडी किया बाय आरएफएलपी, तो आरएफएलपी से क्या होता है कि सेम जीनोम पे जब आपने ये टेक्निक अप्लाई की तो उसके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो डिफरेंट साइड्स में डिफरेंट साइजेस में, सपोज आई विल ड्रा फॉर यू, मीन्स दिस इज अ डीएनए फ्रॉम पेशेंट 1, ओके, and another DNA, this DNA is patient from patient 1, sorry, a person 1, like I will mention it like person 1 and person 2 from a population, and now you are going to apply RFLP, और ओके आप RFLP अप्लाई करते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक जो है जिससे हम डीएनए को कट करते हैं एक्चुअली. अब जब आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी इन 1 मींस देयर विल बी डीएनए कटेड लाइक कटिंग लाइक दिस, ओके, एंड लाइक this DNA will be, okay, this DNA will be cutted into these fragments, but once you will apply that on the same genome, the RFLP, the DNA will be cutted into like this DNA will be like this and like in these families, means there are two different lengths in both of the cases, but the genome of the both of the individual is same, okay. That's why we can say there would be different expression patterns in both of the patient genome or a person or participant's genome. इसी वजह से इनकी जब RFLP हम अप्लाई करते हैं तो ये डिफरेंट सीक्वेंसेस, डिफरेंट लेंथ के सीक्वेंसेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और डिफरेंट लेंथ के सीक्वेंसेस हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेसिस हैं वो भी डिफरेंट होंगे इन पे यहाँ पे और यहाँ पे ये जो कट हुए हैं फ्यूचर में, पहले तो ये था और ये था, फिर जब ये कट किए गए तो ये ऐसे ऐसे साइजेस में कन्वर्ट हो गए, और फिर ये क्या होगा कि इनकी लेंथ डिफरेंट होने की वजह से इनके जो ऊपर जीन्स मौजूद हैं वो डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस होंगे. जब वो जीन्स डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं तो इस मीन्स पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी या वेरिएशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली. सो हियर यू कैन सी. अब फिर हम उनको क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये नॉर्मल बैंड है. जब हम इनको मिक्स कर लें, अगर इन दोनों को मिक्स कर लें तो फिर आप इनको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉर्मल बैंड है, ये डिजीज्ड है. यहाँ पे जो डिजीज्ड है उनकी लेंथ ज़्यादा, मीन्स नॉर्मल इस रेंज में होना चाहिए लेकिन डिजीज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो नॉर्मल और डिजीज़ में हमें लेंथ का आइडिया हो जाता है. और फिर साउदर्न ब्लॉट भी प्लॉट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मीन्स डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, द सेम जीनोम फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वाज कटेड बाय यूजिंग RFLP टेक्निक, and the expression patterns of same genome from two different individual was different, okay. So using this way we can even find or locate exact variation in the genome of the individuals belonging from the same population. Okay, genetic drift. Now we need to discuss genetic drift. Genetic drift is actually known as change in allele frequency due to a chance event. कि allele की frequency एक population में है उसमें कोई change आ जाए. पहले हमने जब पढ़ा था कि जब भी हम किसी allele की frequency find करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो allele एक population में कितना मौजूद है, लेकिन ऐसे हो कि due to mutations, okay, मैं यहाँ पे साथ में आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ कि mutations की वजह से एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में एक अलील म्यूटेट हो जाता है. जब वो अलील म्यूटेट हो जाएगा एक पॉपुलेशन में तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम, जो नेचुरल उसका एक अलील है वो कम होता जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि जब वो म्यूट हुआ है तो वो सारी पॉपुलेशन में उसकी म्यूटेटेड कापीज आ जाएंगी, जो जेन्युइन या ओरिजिनल कॉपी थी उस अलील की वो ख़त्म होती जाएगी. सो दिस इज़ एक्चुअली नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, मीन्स चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू अ चेंज इवेंट. म्यूटेशन हो सकती है और इसके अलावा पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज हो सकता है कि लार्ज पॉपुलेशन के केसेस में, लार्ज साइज पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा तो तब भी एक अलील में चेंजेस आ जाएंगी, अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाएंगी. और इसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट या एक अलील एक पॉपुलेशन से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. हियर इज़ एन एग्जांपल यू कैन सी, मींस इन दिस रेशो देयर वर 5 रेशो मीन्स कि एक अलील डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील दोनों, ये रेड आपको डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ब्लू हैं ये रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स दोनों हैं
ये बेसिकली इक्वल रेशो में है, लेकिन फ्यूचर में जाके क्या होता है कि यहाँ पे 5:1 रेशो आ जाती है और फिर यहाँ पे 10:2 रेशो आ जाती है। मींस ये अलील जो हैं हम लोगों के पास रिसेसिव अलील जो है ये बेसिकली कम हो रहा है, एक पॉपुलेशन से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी कम हो रही है, यहाँ पे इक्वल थी, यहाँ पे कम हो रही है, फिर यहाँ पे भी जाके कम हो रही है, तो नेक्स्ट जनरेशन जब म्यूटेशंस आती हैं तो जो एक अलील है उसकी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रही है तो इट्स मीन दैट इज नोन एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट और चेंज इन frequency of a particular allele or a gene in a population. So next we have another topic which is regarding cytogenetic analysis. We will discuss this topic in next lecture. Stay tuned. If you have any question, you can post your question in comment box. I will try to answer your questions. Bye bye up to now.